करें? स्टार्ट करें? हेलो। हाँ कीजिए, सब आ गया तो कीजिए। तो लास्ट हम so in architecture we have component, shared pull, large pull, data dictionary cache, buffer, database buffer cache, redo log buffer cache. Okay. Now, what does redo log buffer cache contain? Redo entries. Redo entries, that is TTL and TML. Now, there is a redo log file. The all in redo log file, all redo entries are written here. And who writes the redo log entries in the redo log file? LGWR. LGW means log writer. Yes. Okay. Now it means that suppose I'm having this redo log file. I have multiple redo log files. Then LGWR here LGWR writes in this redo log file. Suppose I'm giving a naming convention as redo log one. Okay. Yes. Then redo log two. Then redo log. Okay. Yes. And also we consider this as a group. That means it is group one, group two, okay, and group three. Okay. So redo log file, all redo log file we considered it as in groups. Okay. And now suppose one question. uh, if there is redo log file 1 and database crash, is it possible to do instance recovery without any physical file? Is it possible? रिपीट कीजिए क्वेश्चन। Suppose if we have redo log file 1, only redo log file 1 and database crash, is it possible to do instance recovery? नो। रेगुलर फाइल वन ओनली वन रहेगा तो नहीं होगा। नो सर। Why? मतलब सर अगर सिर्फ रीडू लॉग फाइल बंद है और वो भी क्रैश हो गया तो फिर हमारे पास बैकअप में कहाँ बचा? Hmm. So we can't do the recovery, and also Oracle assure us that there will be no data loss यस। when you use their product. Okay. So SQL implements some more components inside it in redo log file. All this is a physical file as well. So it
includes some components that is we called as a member. Okay, these are the member. This is member 1. Suppose I am designating as member 2, then member 3, member 4, member 5, and member 6. Okay. So there is 3 redo log file present here, and 2 members each. And also there is no barrier of giving only 2 members. We can give more than 2 members. Okay, there is no barrier for that. I'm taking an example as there is 2 members. Okay, if we want to add more member, we need to do multiplex. Okay, we need to do multiplexing for increasing the number of member, either this or increasing the number of groups. Okay. Now, redo log file is a storage part. Yeah, it is a storage part or not. Yes. Yes, sir. So it is a storage part. So there will be some size. Yes. So suppose I'm giving the respective size of R1 as suppose 20 GB, Yes. R2 as 30 GB, Yes. and R3 as 20 GB. Okay. Now we can give different sizes in groups. So in R1 we have given 20 GB, in R2 30 GB, and in R3 means R1 R2 R2 means redo log file 1, redo log file 2, and redo log file 3. Okay, all contains different data. We can give different data for any groups. Okay. Now, in member, these redo file, suppose this is redo log file 1 which contains 20 GB its size, Mm. and its component is member 1 and member 2. So Mm. this 20 GB will be divided in equal parts in 2 members. Because Mm. there is 2 member, if there is 3 member, then it will be divided equally in between these 3 members. But there is 2 members, so what will be the size of member 1? This will be 10 GB and this will be 10 GB, right? Yes. This is the size. Redo log file 2 has size 30 GB, so member 3 will contain 15 GB, and member 4 will contain 50 GB, and redo log file contains 20 GB, so member 5 will contain 10 GB and 10 GB each. Okay. Yep. So by default, members takes the size as equally. We can give different sizes in groups, but not in members. Okay, you can see clearly in group 1, group 2, group 3. These three have different data 20, 20, 20. But in members, you can see all data are equal with respect to their groups. That is 20. There is 10 and 10 for member 1, member 2, and 30 GB. You can see in member 3, member 4, it takes 15 GB, 15 GB equally, and in next respective group, it is same case. Now we know LGWR writes in redo log. Okay, LGWR writes in redo log file. So what happens here?
will write in redo log file 1 first. Okay. Now LGWR writes all redo entries, that is committed and uncommitted data. Okay. So now redo log entries that is committed or uncommitted data. LGWR writes to redo log file 1. Where in redo log file 1? In this, it goes to number 1. Number one. Inside it, a redo log file 1, there is members. So it will write in this member. Okay. So now what happens here? LGWR takes the redo entries in redo log file 1 and redo log file 1. All the data are written in number 1. Okay. Now in member 1, M1, LGWR writes and it fills all the size is taken by all the data. Now what happens here? It is filled. Now what will happen? डाटा चेंज हो जाएगा। Hmm? आर्काइव लोग फाइल में इसके बाद डाटा खुल जाएगा। अभी उसमें नहीं जाना है, इसके बाद क्या होगा? M1 का डाटा तो M2 में कॉपी होगा। तो जब ये अब यहाँ पे M2 है हमारे पास पहले से, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो डेटा होगा इसमें, ठीक है, M1 में लिखते गए सारा डेटा। अब ये जब फिल हो जाता है तो क्या होता है, ये M2 में भी लिखता है। क्या लिखता है? सेम डेटा लिखता है। ठीक है, M2 में भी जाता है और सेम डेटा लिखता है। सेम डेटा लिखता है और कैसा डेटा लिखता है? इसी का इमेज कॉपी इधर लिखता है। ठीक है, फ्रॉम M1। अब क्यों लिखता है आप लोग बताओ? बैकअप रिकवरी के लिए रिकवरी के लिए। So that we can retrieve data from M2 if M1 is crashed. Okay, suppose if M1 crash हो गया तो हम लोग M2 से रिकवर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में सेम डेटा है ना। यस। That's why member gets equal sizes. जो यहाँ डेटा होगा वो यहाँ भी डेटा होगा, मीन्स यहाँ का अगर 10 GB है तो यहाँ का भी 10 GB होगा ना, क्योंकि इमेज कॉपी रखा है। क्लियर? यस। और ये ऑरेकल रिकमेंडेड भी है कि मेंबर्स को इक्वल साइज मिलता है। ठीक है, सर तो M1 और M2 में साइमल्टेनियसली नहीं लिखता है? हाँ, साइमल्टेनियसली लिखता यहाँ पे लिखता है तो वहाँ यहाँ पे भी कॉपी करके लिखते रहता है। ठीक है, जब ये भर जाएगा तो ये भी भर जाएगा। है। वीडियो लॉग 2 हो जाएगा। नाउ वीडियो लॉग फाइल 1 इज फुल। अब क्या होगा? 2 पे जाएगा। 2 पे जाएगा।
फर्दर जो चीजें वो इसमें कॉपी तो अब नहीं होगी, ये वो तो फुल हो गया। वो 2 पे जाएगा या 3 पे जाएगा? 2 पे जाएगा। ओके चलो 1 2 3 4। तो ये जैसे ही यहाँ पे फुल हो जाता है तो क्या होगा कि ये दूसरे ड्यूडू लॉग फाइल में जाना चाहेगा, क्योंकि और तो इसमें भर नहीं सकता। ठीक है, और क्या होगा कि यहाँ पे एक कनेक्शन बनाएगा विथ रीडू लॉग फाइल 2, और वो शिफ्ट करेगा रीडू लॉग फाइल 2 में, और यहाँ पे फिर से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, पहले जो कनेक्शन था LGWR के साथ रीडू लॉग 1 से, ठीक है, यहाँ पे भर गया। अब क्या करेगा, रीडू लॉग फाइल चेक करेगा, वो देखेगा अरे ये तो रीडू लॉग 1 तो पूरा भर गया, अब क्या करे, अब मेरे को तो लिखना ही है, रीडू लॉग राइटर बोल रहा है, अब बोला मेरे को तो लिखना ही पड़ेगा। तो वो देखा कि रीडू लॉग फाइल 2 के पास गया और 3 के पास गया, बोला कि रीडू लॉग फाइल 2 तुम खाली हो कि नहीं हो, तो बोला कि हाँ खाली है आ जाओ। तो उसके बाद फिर रीडू लॉग राइटर क्या बोला कि ठीक है हमारा है, तो वो क्या करता है अपना कनेक्शन इसके साथ सेट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे सेट किया तो रीडू एंट्रीज फिर से इसमें आने लगेगा, और रीडू एंट्रीज इसमें आएगा तो किस में आएगा, मेंबर 3 में आएगा। ठीक है, मेंबर 3 में आएगा तो यहाँ पे भी लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये लिखेगा। अब यहाँ लिखा तो आपको क्या दिख रहा होगा, लिखने के बाद क्या होगा, ये तो भर जाएगा ना। अब ये भर जाए तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये M4 जो है वो भी रीडू लॉग फाइल 2 का मेंबर है, तो इसमें भी वो रखेगा डेटा, किसका रखेगा, वो M3 का कॉपी रखेगा, इमेज कॉपी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 3 पे जाएगा। रीडू लॉग भर फाइल 2 गया। फिर से भर गया, तो क्या होगा, फिर लॉग राइटर फिर देखेगा अरे ये भी तो भर गया, अब क्या करें, तो वो बोलेगा रीडू लॉग 3 के पास जाएगा, वो बोलेगा कि क्या तुम फ्री से फ्री हो, ऐसे पूछेगा, और उसके बाद फिर क्या बोलेगा कि हाँ हम फ्री आ जाओ फिर से। तो उसके बाद फिर क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा अपना कनेक्शन रीडू फाइल 3 में, और वो यहाँ पे फिर डेटा लिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखेगा, फिर इसका भी इमेज कॉपी यहाँ पे लिखेगा। क्लियर? सो यू कैन सी हियर that there is a change of connection from readulog file 1 to readulog file 2 and readulog file 2 through readulog file 3. Okay, तो हेलो, हाँ अगर जब ये रेडियो 2 में जब ये डाटा जब एंट्री हो रहा था तो उस केस में रेडियो 1 से कनेक्शन हट चुका होता है कि उसके थ्रू आता है? हाँ, रेडियो 1 से कनेक्शन हट चुका होता है या फिर उसके थ्रू आता है, मतलब LGWR नहीं डायरेक्ट नहीं यहाँ नहीं, पे हट चुका रहता है, हट चुका रहता है। ठीक है, readulog फाइल 1 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी ये छोड़ देता है, लॉग राइटर उसको छोड़ के अब क्या बोला, अभी इससे कनेक्शन फिर बना लेगा, फिर उससे कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो readulog फाइल 1 को तो छोड़ देगा, क्योंकि अब तो वो उसमें कुछ काम नहीं कर सकता readulog राइटर, क्योंकि पूरा डेटा तो भर गया उसका, तो उसको छोड़ देता है, फिर readulog 2 को पकड़ता है, फिर वो भर जाता है तो फिर उसको छोड़ देता है, फिर readulog 3 को पकड़ता है। ठीक है, so here we can see there is change of connection from readulog file 1 to readulog file 2 and readulog file 2 to readulog file 3. Yeah, सबको दिख रहा है ये वाला? यस सर। So this scenario of changing the connection from one readulog file to another readulog file, that scenario we can say it a log switch. Okay, बता था ना लॉग स्विच, पहले टर्म इसके बारे में बोला था ना, कहाँ यूज किया था लॉग स्विच? यस सर। वो redo log फाइल बफर के अच्छे से फाइल में LGWR कौन से कंडीशन में फ्लश करता है डेटा लॉग इसका राइटर मतलब। कब
वो रीडू लॉग एंट्रीज या फिर रीडू लॉग बफर कैशे से रीडू लॉग एंट्रीज को फ्लश करते हैं रीडू लॉग वन में। तो ये होता है। अब यहाँ देखो रीडू जैसे ही लॉग स्विच हुआ तो फिर ये दूसरा रीडू लॉग फाइल 2 में है और वहां एलजीडब्ल्यूआर फिर से रीडू एंट्रीज को फ्लश करने लग गए थे, है ना? ये हुआ। हम्म। तो also a number is generated, okay, from this connection there is a number which is generated corresponding to every lock switch. That number is known as lock switch number. Okay, clear? ये जब भी लॉक स्विच करता है तो एक नंबर जनरेट होता है, ठीक है, वो भी अपडेट होता है उधर, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग लॉक स्विच नंबर कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। अब आप लोग देखो कि रीडू लॉग फाइल 1, रीडू लॉग फाइल 2 एंड रीडू लॉग फाइल 3 तीनों के तीनों भर गए, ठीक है, तीनों तीनों पूरे कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब वो लॉक स्विच कैसे करेगा, कहाँ करेगा? कुछ तो करेगा नहीं है। भरने के बाद क्या होगा? अब इसको तो लिखना ही है ना, कंटिन्यूस काम चल रहा है, कंटिन्यूस रीडू एंट्रीज आ रही है, तो इसको तो भरना पड़ेगा। तो ये तीनों भर गया, अब क्या होगा? अब पूरा उठा के अब आर्काइवर में स्टोर होगा। रीडू लॉग फाइल के क्या लिमिटेशंस है? हम्म, रीडू लॉग फाइल के लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशन? जैसे मतलब 3 ही ले सकते हैं। नहीं, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। से और आर्काइवर में स्टोर तो होगा। फिर तो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। ऑरेकल जो होता है वो रिकमेंड करता है कि आप 3 लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर सपोज आप देख लो कि रीडू लॉग फाइल 1 क्रैश कर गया, ठीक है, अगर रीडू लॉग फाइल 1 क्रैश कर गया तो आप रीडू लॉग फाइल 2 से उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अब रीडू लॉग फाइल 1, रीडू लॉग फाइल दोनों ही क्रैश हो गया तो क्या होगा? रीडू लॉग फाइल 3 से आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तो तीनों में डाटा तो अलग अलग है ना। हाँ, अलग अलग है, तो वो बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? अब ये पूरा भर गया तो अब इसके पास तो और कोई रीडू लॉग फाइल तो है नहीं ना। नहीं, आर्काइवर में स्टोर होगा सर। हाँ, लॉक बता रहे चाहिए आप लोग, ठीक है, उस समय से आर्काइवर कर रहे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में बता दिया था इसीलिए ना। हाँ सर। चलो, नहीं बताना चाहिए था। चलो फिर इधर क्या होगा कि जैसे ये भर जाए इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए ऑरेकल एक नया एक्टिविटी इम्प्लीमेंट किया था रीडोलॉग फाइल 1 में, ठीक है। कि ऐसा सिनेरियो हो जाए तो क्या होगा। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे वो रीडोलॉग फाइल 1 में आते हैं, यहाँ पे डेटा जैसे ही भरा 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 पूरा भर गया, ठीक है। पूरा पूरा भरने के बाद क्या होता है कि वो जैसे ही लॉक स्विच करता है तो यहाँ पे आर्काइवर आता है, ठीक है। आर्काइवर आता है, बोला कि इधर तो पूरा भर गया है, तो वो क्या करता है कि चलो अब हम मेरा काम स्टार्ट होता है कि ये सब जो डेटा है ये सब डेटा को उठा के, ठीक है, ये सब डेटा को उठा के आर्काइवर क्या करता है? आर्काइव लॉग फाइल में डालता है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ये सब उठा के यहाँ डाल देगा। अब यहाँ पे जैसे ही लॉक स्विच होता है तब आर्काइवर स्टार्ट होता है, ठीक है। जब रीडू लॉग फाइल 1 से कनेक्शन हटा के जब लॉग राइटर रीडू लॉग फाइल 2 के साथ कनेक्शन बनाता है तब यहाँ आर्काइवर स्टार्ट करता है और यहाँ पे ऐसा 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 करके वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है खाली करने का। अब यहाँ पे 3 चीज होती है। स्टेटस होता है, ठीक है, हर रीडू लॉग फाइल का कुछ ना कुछ स्टेटस रहता है।
तो कौन कौन से स्टेटस है? पहला होता है आपका करंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है इनएक्टिव, और तीसरा होता है एक्टिव, ठीक है। ये तीन स्टेटस होते हैं रेडियो लॉग फाइल वन में, रेडियो लॉग फाइल्स में, ठीक है। तो ये देखो, अ, अब जैसे ही सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे ही लॉग राइटर यहाँ पे आके इसको लिखने लगता है, ठीक है, डेटा को इस रेडियो लॉग फाइल वन में लिखने रहता है, तो इसका जो स्टेटस रहता है वो स्टेटस हो जाता है करेंट, ठीक है। ये करेंट स्टेटस दिखाता है। करेंट मीन्स ये अभी लॉग राइटर इसमें लिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे लॉग स्विच हो जाता है, तो क्या होता है, इस रीडू लॉग फाइल टू का स्टेटस करेंट हो जाता है, और इसका हट जाता है करेंट स्टेटस। नेक्स्ट, ये जब भर जाता है तो लॉग स्विच होता है फिर से यहाँ पे, तो क्या होता है, इस रीडू लॉग फाइल का भी स्टेटस करेंट हो जाता है, और यहाँ का जो करेंट स्टेटस था वो हट जाता है, ठीक है। करेंट स्टेटस समझ में आया सबको? यस। If data starts writing, then that redo log file will have a status which is current status, okay। और अब आते हैं इनएक्टिव एक्टिव में। ये स्टेटस कब है? जब रीडू लॉग फाइल आइडल बैठा रहता है ना, मतलब इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली बैठा हुआ है, तब इस स्टेटस को मैं इनएक्टिव स्टेटस कहता हूँ, ठीक है। अब सपोज आप बताओ कि लॉग राइटर जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करने वाला होता है, तो रीडू लॉग फाइल वन का क्या स्टेटस रहेगा? हम्म? स्टार्ट करने वाला रहता है अगर वन पे, तो वो एक्टिव हुआ। आ, इनएक्टिव होगा, मतलब स्टार्टिंग में सब इनएक्टिव ही रहता है। हाँ, इनएक्टिव रहता है। अभी तो बताया कि सर अगर लेकिन रीडू लॉग फाइल वन आइडल बैठा हुआ है, उसको कुछ काम नहीं है, ठीक है। रीडू लॉग फाइल सब आइडल बैठा हुआ, तो उसका जो स्टेटस होता है वो इनएक्टिव होता है, और जैसे ही लॉग राइटर उसमें लिखना स्टार्ट करता है, तब उसका स्टेटस इनएक्टिव से चेंज होके करेंट हो जाता है। बिफोर कनेक्शन एंड डिफॉर्म इज एक्टिव। कोई डाउट है जब इसमें? नहीं लिखा तो एक्टिव लिखने वाला है तो करंट एक्टिव क्या हुआ? हाँ, कैसे? नहीं नहीं ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? तो अपने में बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैं सोचा कि जस्ट वो जब उसमें लिखने वाला होता है तो वो एक्टिव हो जाता है, जब नहीं हो रहा वो आइडल बैठा है तो ऑब्वियसली वो इनएक्टिव है, लेकिन जब वो लाइक उसमें तो अब अभी तो लिखेंगे एक्टिवेट करना होता है तब अभी तो सिर्फ करंट और इनएक्टिव बताया आपको, बस दो ही ऑप्शन था, तो आप तीसरा ऑप्शन कहाँ से आया? इफ यू चूज ए देन यू लूज बी। so you thought that you should go with C, huh? That is active. चलो, फिर ये तो क्लियर हो गया ना कि ये जब खाली बैठा रहता है, आइडल बैठा रहता है, तो इसका स्टेटस इनएक्टिव रहता है, ठीक है। और जैसे ही लॉग राइटर डेटा लिखना स्टार्ट करता है वीडियो लॉग फाइल में, तो वो अपना स्टेटस इनएक्टिव से करंट में चेंज कर देता है, ठीक है। अब बच गया एक्टिव, है ना। एक मिनट मैं चेंज कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे RL1 करते हैं, RF1 करते हैं, RF2 है, RF3 है, यहाँ
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, 5 एंड नंबर 6। ठीक है, तो क्या बता रहा था, एक्टिव इनएक्टिव ना। अब LGWR क्या करता है, वो फाइल यहाँ पे लिखा। अभी तो स्टार्टिंग में सब इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव। ठीक है, अब LGWR जैसे ही स्टार्ट करता है लिखने को, तो क्या होगा, वो यहाँ पे चेंज करके अपना स्टेटस करेंट कर लेगा। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव से करेंट कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही लॉक स्विच हुआ, ठीक है, लॉक स्विच हुआ तो क्या हुआ, ये इनएक्टिव था, तो लॉग राइटर जैसे ही इससे कनेक्शन बनाया और डेटा लिखना स्टार्ट किया तो इसका करेंट हो जाएगा स्टेटस। ठीक है, और इसका स्टेटस वो हट जाएगा करेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही फिर तीसरा का लॉक स्विच हुआ तो इसका स्टेटस हट जाएगा करंट, और इसका हो जाएगा करंट स्टेटस जैसे ही डेटा लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना सबको। कब इनएक्टिव रहता है, कब करंट रहता है। यस। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे ये लिखना स्टार्ट किया डेटा सारा, ये भर गया। ठीक है, ये भर गया। अब यहाँ पे क्या कौन आता है, आर्काइवर आता है अपना। ठीक है, हाँ। और उसका लॉग फाइल भी रहता है, ARF1 सपोज, वो भी रह सकता है, दो तीनों हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो आर्काइव लॉग फाइल है अपना। तो क्या होगा कि आर्काइव पर देखेगा कि ये भर चुका है, तो ये डेटा उठा के यहाँ पे अपने साथ इसके अंदर डालेगा। ठीक है, यस। अब ये कब डालता है, जब लॉक स्विच हो जाता है, रीडो लॉग फाइल 2 के साथ कनेक्शन LGWR बना लेता है और डेटा लिखना स्टार्ट कर देता है रीडो लॉग फाइल 2 में। तब क्या होता है, तब आर्काइवर स्टार्ट होता है और यहाँ से डेटा को लेके यहाँ फ्लश करने लगता है आर्काइव लॉग फाइल में। अब ये जो सिनेरियो है, इस टाइम पे क्या था कि जैसे ही लॉक स्विच हुआ, ये इसका पहले तो करंट स्टेटस था, लॉक स्विच होने के बाद ये अपना स्टेटस तो हटा लेगा ना, अभी बोला था, तब इसका करंट स्टेटस हो जाता है। हम्म। अब जैसे ही जिस जिस रीडो लॉग फाइल में आर्काइवर प्रोसेस अपना काम स्टार्ट करता है, उस फाइल का स्टेटस एक्टिव हो जाता है। अच्छा। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब जब तक ये लिखेगा तब तक उसका स्टेटस एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब सपोज ये भी भर गया। ठीक है, ये भी भर गया और ये इसका चल रहा है, आर्काइवर अभी लिख रहा है, फिर वो देखेगा कि ये भी भर गया। ठीक है, तो वो यहाँ का जो काम खत्म कर लेगा तो फिर यहाँ पे आएगा आर्काइवर, यहाँ पे आके फिर इसका डेटा को उठा के फिर आर्काइव लॉग फाइल में डालेगा। ठीक है, तब इसका क्या स्टेटस हो जाएगा, इसका एक्टिव हो जाएगा स्टेटस, है ना, क्योंकि ये लॉग स्विच कर चुका है रीडो लॉग फाइल 3 में। तो अब जब सारा डेटा भर जाता है तब क्या होता है, तब ये लॉग स्विच करके फिर से पहले 2 में आता है, पूछता है कि क्या तुम खाली हो। लॉग राइटर पूछेगा कि रीडो लॉग फाइल 2 से क्या तुम खाली हो, और बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो अभी आर्काइवल प्रोसेस चल रहा है, तो हम नहीं, अब खाली नहीं है। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो क्या करेगा, रीडो लॉग फाइल 1 में आएगा, वो पूछेगा क्या तुम खाली हो, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल खाली है। अब क्यों खाली था ये, क्योंकि आर्काइवर पहले तो इसका डेटा को भर रहा था ना, फ्लश कर रहा था आर्काइव लॉग फाइल 1 में। अब इसका जब फ्लश कर गया फिर वो रीडो लॉग फाइल 2 में गया ना, क्या बोलते हो। स्टोरेज पर पहले डिपेंडेंस पहले है। पहले तो रीडो लॉग फाइल 1 को फ्लश करके इसमें कंप्लीट किया अपना प्रोसेस, फिर वो रीडो लॉग फाइल 2 में जाएगा ना। ये थोड़ी ना कि इसका आधा काम करके अरे यहाँ पे हमको ये मिल गया, टेंडर मिल गया तो हम यहाँ पे काम करेंगे अब, ऐसा तो नहीं ना। ये तो पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ना यहाँ पे वो आएगा ना। तब जब तक ये अपना भरेगा तब तक रीडो लॉग फाइल 1 तो खाली हो चुका होगा, क्योंकि ये रीडो लॉग फाइल 2 के पास आया तो बोला क्या वो कि आर्काइवर काम चल रहा है मेरा आर्काइवर का। तो फिर वो रीडो लॉग फाइल 1 के पास जाएगा तो बोलेगा मैं खाली हूँ, क्योंकि मैं आर्काइवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
तो उस सीन में रीडू लॉग फाइल 1 का क्या स्टेटस रहेगा? एक्टिव से स्टेटस चेंज करके इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब आर्काइवर अपना काम कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, और इनएक्टिव जैसे ही रहेगा तो क्या होता है, रीडू लॉग फाइल 3 देखता, लॉग राइटर देखता है कि रीडू लॉग फाइल 1 इनएक्टिव है, तो क्या करेगा, फिर ये इसके साथ कनेक्शन बनाएगा रीडू लॉग फाइल 1 के साथ, और यहाँ पे फिर डेटा लिखना स्टार्ट करेगा। तो वो यहाँ पे डेटा लिखना स्टार्ट करेगा तो फिर इनएक्टिव से चेंज करके करंट में हो जाएगा इसका स्टेटस। ठीक है, ओके। अब करेंट होगा तो यहाँ पे डेटा लिखना स्टार्ट करेगा, फिर जैसे ही ये भरेगा फिर वो पूछेगा कि अरे ये तो भर गया, फिर लॉग राइटर पूछेगा रीडू लॉग फाइल 2 से, वो बोलेगा कि यहाँ पे देखो मेरा तो अभी आर्काइवर कंप्लीट हो चुका है तो आप तुम भर सकते हो मेरे में। और फिर रीडू लॉग फाइल 3 में नहीं जा पाएगा क्योंकि रीडू लॉग फाइल 3 में उस टाइम पे आर्काइवर चल रहा होगा। तो रीडू लॉग फाइल 2 में जाके वो फिर फ्लश करने लगेगा लॉग स्विच करके, तो उस टाइम पे इसका स्टेटस इनएक्टिव रहेगा। और जैसे ही लॉग राइटर कनेक्शन बना के डेटा लिखना स्टार्ट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेटस करेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। थोड़ा मजेदार ही है कि नहीं? रेगुलर प्रोसेस चलता है सर। हाँ, कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम प्रोसेस चलता है। ओके सर। कोई डाउट है इसमें? अभी तक नहीं। फिर इसी कारण से हम लोग रीडू लॉग फाइल 3 लेते हैं। हाँ, इसी कारण से रीडू लॉग फाइल 3 लेते हैं कि अगर हाँ, पहले का स्टेटस एक्टिव हाँ। है। अब रीडू लॉग फाइल 3 इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो सपोज रीडू लॉग फाइल 1 में भर रहा है डेटा। ठीक है, इधर रीडू लॉग फाइल 1 है और रीडू लॉग फाइल 2 है, इसमें तो पहले डेटा भर रहा है। ठीक है, और ये खाली है। अब ये जब डेटा भर जाएगा तो क्या होगा, लॉग स्विच होगा ना, लॉग स्विच होगा तो फिर इसमें भरने लगेगा और यहाँ पे आर्काइवर प्रोसेस स्टार्ट करेगा, आर्काइवर स्टार्ट कर लेगा यहाँ पे भरना। ठीक है, आर्काइव लॉग फाइल में अब जैसे ही यहाँ पे भरना स्टार्ट हुआ, अब ये फिल हो गया। अब सपोज इसका 20 GB था और इसको 10 GB दे दिया, तो ऑब्वियसली ये जल्दी भरेगा इसके रिस्पेक्ट में, 2 टाइम्स फास्ट ये भरने लगेगा, है ना। तो ये भर जाएगा तो क्या होगा, फिर इसको तो लॉक स्विच करके कहीं तो डालना पड़ेगा ना। तो इसके पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो लॉग राइटर वन ही ऑप्शन है, लॉग राइटर 1, सॉरी रीडू लॉग फाइल 1। तो लॉग राइटर इसके पास आएगा, वो बोलेगा कि अरे तुम खाली हो, तो बोले नहीं हम खाली नहीं है, हम यहाँ पे आर्काइवर में काम चल रहा है। ठीक है, ऐसे पूछेगा। अब वो उसको भगा देगा, बोला भागो यहाँ से। ठीक है, रीडू लॉग फाइल 2 को और लॉग राइटर को। तो क्या होगा फिर, यहाँ पे डेटा लॉस होने का चांस है कि नहीं अपना, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करेगा, रीडू लॉग फाइल 1 अलाउ ही नहीं करेगा डेटा को डालने के लिए, क्योंकि आर्काइवर प्रोसेस चल रहा है। तो कैसे, कहाँ पर डेटा डालेगा, ओवरराइट तो नहीं करेगा ना। ठीक है सर। इसलिए ऑरेकल रिकमेंड करता है कि 3 रखो तो बेहतर होगा आपके लिए, ताकि तब तक एक का अगर आर्काइवर चल रहा हो तो उसका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो दूसरा का आर्काइवर होगा, तब तक तुम अपना जब तक तुम्हारा ये भर जाएगा पूरा डेटा, तब तक तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक नया रीडू लॉग फाइल तैयार रहेगा, ताकि उसमें तुम डेटा भर सको। ठीक है, इसीलिए ऑरेकल रिकमेंड करता है कि मिनिमम 3 रहना ही चाहिए। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज चलता है ना। हाँ ये ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज प्रोसेस में चलता है हमेशा, मतलब हाँ, टू R2 टू R3, R1 टू R3 नहीं जा सकता। नहीं R1 टू R3 जा सकता, कोई टेंशन नहीं। अच्छा। अगर आइडल बैठा है कोई भी, अब सपोज R2 में चल रहा है, सपोज R1 में भर रहा है, ठीक है, R1 भरते भरते भर गया और R2 में आर्काइवर चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब वो डेटा कहाँ डालेगा, R3। R3 में डालेगा ना, अच्छा अच्छा। क्योंकि R3 खाली बैठा हुआ है और इसमें तो आर्काइवर चल रहा है और रीडू लॉग फाइल 1 में भर चुका, तो अब वो डायरेक्ट R2 के पास जाएगा, वो बोले कि नहीं हम खाली नहीं है,
फिर वो क्या बोलेगा, फिर रीडू लॉग फाइल 3 के पास जाएगा, बोलेगा हाँ हम बिल्कुल खाली है तो सॉरी, तो R1 से क्या होगा, R3 में जाएगा, ठीक है। अच्छा। अब वहां पे बढ़ना स्टार्ट करेगा, हम्म। मतलब इसको एक स्पेस मिल ही जाता है अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे डेटा लॉस होने का बहुत कम चांसेस होता है, और साथ साथ हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं। अब आप लोग जो बोले थे कि अलग अलग फाइल रहता है और यहाँ से हम लोग रिकवरी कर सकते हैं 2123 से। अब सपोज देखो आप लोग यहाँ पे रीडू लॉग फाइल में आर्काइवर क्या करता है, वो डाल देता है तब तक सारा फाइल को, तो फिर यहाँ से आप इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो रिकवरी हाँ सर। इस फाइल से, हाँ। क्योंकि सारा डेटा तो इसमें डाल देगा। अब इसका फिर रीडू लॉग फाइल 2 में आएगा, फिर इसका भी डेटा डाल देगा, है हाँ ना। सर। हम्म। अब रीडू लॉग फाइल 2 तो, और फिर रीडू लॉग फाइल 3 का भी वही प्रोसेस है, ठीक है। यस सर। तो थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे क्या आप लोग। हाँ सर। तो आप लोग को लास्ट क्लास में डेटा फाइल वगैरह बताया था, तो आप लोगों ने देखा कहाँ क्या उसका लोकेशन होता है, कैसे होता है, आप लोग देखा कि नहीं, नहीं देखा होगा, नहीं सर। है ना। हाँ फ्री था ना, मतलब अब बैठो शांति से सिर्फ क्लास करो ना। चलो कौन बताएगा, लॉगिन। डॉट स्पेस उड़ा EN2 ABCD। अब हम डेटा फाइल ना डेटाबेस हमें चेंज कर देंगे, सबको एबीसीडी पता है। SQL प्लस C as C space as CSDBA। सर यहाँ पे एक डाउट है सर, इसका पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड ऑरेकल है जो आप दिए हुए हो, डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे आपको पासवर्ड पूछता है ना। हाँ। एक तो आपका सिस के लिए पूछता है और एक सिस्टम के लिए पूछता है, वहां सिस के लिए जो पूछता है वही पासवर्ड होता है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट वहां पे नीचे वाला जो ऑप्शन होता है उसको चेक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सिस और सिस्टम दोनों का पासवर्ड एक हो जाता है जो हम लोग ऑरेकल डालते हैं। हाँ सर, अगर सर यहाँ पर /SSDBA लिखते हैं तो वहाँ पर तो उस केस में पासवर्ड नहीं मांगता है। हाँ तो वो ऑटोमेटिक लॉग इन कर लेता है। कौन अब कनेक्शन CONN कौन। नहीं नहीं, हमको सिस से ही काम करना अभी, ठीक है। अच्छा ठीक। तो आप लोग बताओ सर इसमें सर प्रीवियस कमांड में नहीं जा सकते क्या, मतलब SQL में मेरा जब ऑन करता हूँ वहाँ पे नहीं होता है, क्या चीज नहीं सकता। मतलब अपर एरो लोअर एरो जो नहीं होता नहीं है नहीं ना। नहीं 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 नहीं, सीक्वल में नहीं काम करता है, ओएस लेवल पे काम करता है। अच्छा अच्छा ठीक। अब आप लोग बताओ, इफ वी वांट टू सी डेटा फाइल, ओके, हम्म। ऑफ डेटाबेस, हाउ वी कैन सी। पहले बता दे रहे हैं, हमारे पास दो तरीका है देखने का, ठीक है। इफ यू वांट टू सी एनी डेटा फाइल इन योर डेटाबेस, हाँ we have two means for seeing that. One is physical mean and second is logical mean, ठीक है। हाँ अब आप लोग बताओ फिजिकल और लॉजिकल में कैसे देखेंगे। हम लोग दोनों में नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन और डेटा फाइल का लोकेशन ये सब हम लोग देख सकते हैं, दोनों ही में फिजिकल लॉजिकल, ठीक है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरीके से मैं देख सकता हूँ, है ना। तो तब क्या यूजर कैसे देख सकते हैं हम लोग फिजिकल और लॉजिकली, फिजिकली एंड लॉजिकली। शो यूजर लिख के हाँ, शो यूजर। शो यूजर में क्या आएगा, यूजर नेम आता, डेटा फाइल के बारे में कहाँ इंफॉर्मेशन आएगा। हाँ हाँ कोई भी डेटा को रिट्रीव करना हो डेटाबेस का, तो हम फिजिकली और लॉजिकली दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिजिकली हम लोग कैसे कर रहे हैं, कौन से प्रॉम्प्ट में करेंगे,
और लॉजिकली कौन सा प्रॉब्लम में करेंगे? व्यू से रिक्वेस्ट क्या बोल रहे हो? बताओ, आंसर बताओ जल्दी, फास्ट। कोई पेज पलट रहा है क्या बहुत जोर से? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रीडर डाटा फाइल। क्या बता रहे हो आप लोग? ये तो बताओ फिजिकली या लॉजिकली कौन कौन से प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे? अगर फिजिकली देखना है तो हम लोग कौन से प्रॉब्लम पे देखते हैं, और लॉजिकली देखना है तो कौन से प्रॉब्लम पे देखते हैं? डेटाबेस तो हम लोग लॉजिकल एंटिटी सबको पता है ना? तो आप लोग बताओ। ट्राई करो एटलीस्ट। स्टोरेज, फिजिकल तो स्टोरेज पार्ट है, स्टोरेज में से हाँ, कैसे दिखे? अब इसीलिए तो क्वेश्चन दिया कि हम लोग डेटा फाइल कैसे देखेंगे, तो बोला डेटा फाइल मैं दो तरीके से देख सकता हूँ। डेटाबेस से अगर मतलब जैसे व्यूज होता है वो लॉजिकल पार्ट है, वहां से देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं तो। हाँ, अभी क्या बोले आप? जो व्यूज होता है ना, हम्म ई डॉलर हम्म डेटाबेस, हम्म हम्म वहां हम्म, से हम हम्म। लोग डेटा फाइल देख सकते हैं, हाँ, एकदम सही। लॉजिकल पार्ट। हाँ, और फिजिकली कैसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, फिजिकली कैसे देख सकते फिजिकली तो फिजिकली जब स्टार्टअप होता है तब जो दिखता है वही है क्या? हैं? हाँ, फिजिकली जब स्टार्ट है, ओ फिजिक सॉरी, फिजिकली तो हम लोग जब इंस्टेंस इंस्टॉल कर रहे थे तब देखे थे कौन सा डेटा फाइल क्रिएट हुआ था। तो बेसिकली लॉजिकली तो आप सही बोले कि व्यूज से हम लोग देखते हैं या फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट से देखते हैं, हाँ। ठीक है। बट फिजिकली हम लोग कैसे देखते हैं? बाय द हेल्प ऑफ लिनक्स कमांड, विच इज ओएस अ, कमांड। अच्छा हाँ हम लोग सीडी करके जाके देख सकते हैं कि नहीं, कोई डायरेक्टरी में ही तो होगा ना अपना फाइल। हाँ। तो लॉजिकली हम वैसे जाके देख सकते हैं और फिजिकली ऐसे जाके देख सकते हैं। क्लियर? ये अब उसका लोकेशन किधर रहता है? किसका? डेटा फाइल का पता है? नहीं नहीं पता? हम्म, नहीं। नहीं पता। तो ऑरिकल बेस पता है क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्या होता है, पता है तो बताओ। ये U01 ऐप और एप्पल का होता है Oracle से। नहीं, लोकेशन नहीं पूछो, क्या होता है ऑरिकल बेस? यहाँ पे Oracle सर्वर रहता है, Oracle होम रहता है, डेटाबेस सर्वर रहता है। अरे ऑरिकल बेस मैं बताया हूँ ना आप लोगों को क्या होता है ऑरिकल बेस। भूल गया। पेज पलटने दीजिए, बोल दूंगी। बताइए, आप लोग भूल जा रहे हैं, कैसे चलेगा? हाँ, अभी हम ओरा इन्वेंट्री पुश देते तो आप लोग हालत खराब हो जाता। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग ओरा इन्वेंट्री के बारे में भी भूल चुके हो। भूल चुके हो, भूल पता है, ऑरिकल बेस नहीं याद है तो ऑरिकल इन्वेंट्री कौन याद रखता है? नहीं नहीं, दो दूसरा भी लोग है, आप मेरे को सिर्फ देख के मत ऐसा कंफ्यूज कीजिए कि आप लोग भूल गए। तो सुन लीजिए अभी फिर से, क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। रूट डायरेक्टरी है Oracle, इतना मालूम किया है। हाँ, भूलते रहो आप लोग सब। तो ऑरिकल बेस क्या होता है? इसको हम लोग रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। In Oracle base, we keep all the softwares with their version in this location with different versions. बताया था ऐसा कुछ? हाँ बताते। और उसका लोकेशन क्या होता है? U01 APP Oracle जो हम लोग क्रिएट किए थे
at the time of database software installation. हाँ तो cd करके देखते हैं, u01 ll किया, ऐप है, यहाँ पे आपको डेटा फाइल दिख रहा है ठीक है पहले से, लेकिन ये सही लोकेशन नहीं है, ये किसी ने बैकअप ले लिया यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, बेस के अंदर होता है, ठीक है। cd u01 app में जाते हैं, ll करते हैं, यहाँ पे ऑरेकल देखो देखो कहाँ कहाँ इधर उधर सब जगह बैकअप लिया हुआ है, और इसके बाद ऑरेकल में आते हैं, ये हमारा बेस में आ गया हम लोग। अब जैसे ही बेस में आएंगे आप देखोगे कि इसमें हम फाइल्स वगैरह डाले थे ना, ये सब जिप फाइल वगैरह इस लोकेशन में डाले थे कॉपी करके, हाँ। और देखो फ्लैश रिकवरी एरिया भी ऑन करके रखा है, वहां पे क्या था कि हम लोग अनचेक करते थे फ्लैश रिकवरी एरिया, है ना। तो मेरे पास डेटाबेस ABCD था, बनाया था, सबको याद होगा। एट टाइम ऑफ डेटाबेस क्रिएशन, ठीक है, ABCD नाम करके एक डेटाबेस का डायरेक्टरी ऑरेकल बेस में क्रिएट हो जाता है, जो कि आप इधर देख रहे हो, ABCD, ठीक है, दिख रहा है ये ABCD, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। और ABCD क्या है, हम लोग का डेटाबेस नेम है, ठीक है। तो डेटाबेस का एक अपना डायरेक्टरी जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब इसके अंदर जाते क्या है हम देखते हैं, देखो क्या क्या है इधर। हाँ पहला तो कंट्रोल फाइल है, ठीक है, कंट्रोल फाइल का एक्सटेंशन .ctl होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल डेटा फाइल है, दैट इज उस जो भी डेटा फाइल होता है उसका एक्सटेंशन .dpf होता है, ठीक है। यहाँ देख लो ये सब डेटा फाइल है अपना, सीसॉक, सिस्टम, टेम्प, अंडू, यूजर, एग्जाम्पल, ये सब बताया ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। हाँ और ये देखो यहाँ पे हमारा रीडू लॉग फाइल भी है, और कितना है इधर आप लोग देखो, 3 है। कितने ऑटोमेटिकली ये 3 क्रिएट हुआ है, ये सब हम क्रिएट नहीं किए, पहले से क्रिएट हुआ, जब डेटाबेस क्रिएट किया था तब ऑटोमेटिकली ये सब क्रिएट हुआ है, क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट इसीलिए 3 रहता है मिनिमम रीडू लॉग फाइल, ठीक है। अब SCN आप लोग करके देखे थे, SCN करके देखा था आप लोगों ने, क्या था कमांड SCN देखने के लिए। SCN नंबर देखने के लिए हम लोग कौन सा व्यू यूज करेंगे बताइए। वो $v डेटाबेस यूज करेंगे। हाँ तो क्या कमांड था, $v डेटाबेस में जाके एक चेन होता था, हाँ करंट अंडरस्कोर SCN होता था, उससे हम लोग देख सकते हैं सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर SCN, ठीक है, यही होगा, डेटाबेस। अच्छा हाँ हाँ फ्रॉम v v डेटाबेस होता है, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस होगा। हाँ ठीक है। हाँ देखो दिख रहा है क्या लिखा, 1170839, फिर से एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ, 42 हो गया, फिर एग्जीक्यूट किया 44 हो गया, फिर एग्जीक्यूट किया 45 हो गया, 47, हर एक सेकंड में वो चेंज हो रहा है ना, एक सेकंड से भी जल्दी चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप लोग सब, दिख रहा है चेंज होते जा रहा है, हो रहा है ना, देखो जैसे जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वैसे वैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंट SCN देख सकते हैं। So what is this, so database has its own timestamp,
and with the help of SCN number we can see a particular transaction is done on which time or what time. Okay, clear? Now data file, we can see data file by the help of two means, that is physical and logical. Okay, so with by physical mean we can we already seen where is data file, where is our data file, that is in the Oracle base. Yeah, in Oracle base with the SID name as database name. Okay, which contains all control file, redo log file and data file. Okay, इस लोकेशन में हमारा सारा कंट्रोल फाइल रहता है, रीडू लॉग फाइल रहता है और डेटा फाइल भी रहता है, तीनों रहता है इसमें। ठीक है, ये तो फिजिकली हम लोगों ने देख लिया। अब लॉजिकली कैसे देखेंगे? लॉजिकली के लिए मेरे को लॉजिकल एंटिटी यूज करना होगा, जो कि हम लोग का सीक्वल है ना। इफ यू वांट टू डील एनीथिंग विद लॉजिकल मीन वी यूज सीक्वल। ओके, तो डेटा फाइल देखने के लिए यूज क्या है हमारा, पता है? $V डेटाबेस है क्या? डेटा DWA फाइल data देखना है, file। डेटा फाइल देखना है। यहाँ पे हम क्या दें, DSC देन DBA अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, ये देते तो मेरे को ये दिखेगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको और क्या दिखेगा? अब इसके अंदर आपको चेक करना है तो इसमें आप रिट्रीव करो, सेलेक्ट, इधर फाइल नेम ले लेते हैं। ठीक है, फिर सपोज हमें देखना है साइज देखना है। ठीक है, तो बाइट्स है, बाइट्स को चेंज करेंगे 1024 में तो क्या होगा, किलोबाइट। फिर 1024 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मेगाबाइट। एमबी में ही देखते हैं। ठीक है, और क्या देख लें, यही दो देखते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, खुद से। फ्रॉम एंटर किया, देखो क्या दिख रहा है आप लोग को, ये देखो। ठीक है, दिख रहा है? ये देखो क्या है, by the help of db underscore data underscore file we can see user data file location and its size as well, that is 5 MB. Undo tables, it is table space but it is also a data file. Okay, जो भी हम लोग का जो चेंजेस करते हैं, अपडेट वगैरह डिलीट वगैरह कराते हैं, तो ये वो सारे डेटा यहीं पे आते हैं। ठीक है, और U01 app Oracle next CSOX system example, these have this sizes. Okay, yeah, ये हुआ। और हम इसको रिट्रीव v डॉलर डेटा फाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम DESC v डॉलर डेटा फाइल लिखते हैं। ठीक है,
तो ये देखो इतना सारा इसमें कंटेंट्स है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या ले लें, फाइल ले लेते हैं, ठीक है। नेम ले लेते हैं, फिर बाइट ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम बी डॉलर डेटा फाइल, ठीक है। देखो, अरे ठीक है, देखो ठीक है, सेम पिछले वाले में यूजर में 5 था ना, 5 है, हाँ, सब सेम है ना, चेंज तो नहीं है कुछ। नहीं, तो ऐसे हम लोग डेटा फाइल देखते हैं। अब सपोज हमें कंट्रोल फाइल देखना है, ठीक है। तो कंट्रोल फाइल देखने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, बी डॉलर कंट्रोल फाइल यूज करते हैं, ठीक है। बी डॉलर कंट्रोल फाइल, ठीक है। तो भाई यहाँ ये सब दिखा, तो सीडी करके सॉरी सेलेक्ट करते हैं। ऐसे आप लोग को तो दिखा दिया ना कंट्रोल फाइल वगैरह सब फिजिकली, हाँ सर, ये हो गया। और यहाँ ब्लॉक साइज वगैरह जो भी देखना है वो आप देख लेना, यहाँ पे डायरेक्ट रिट्रीव कर लेता हूँ, बी डॉलर कंट्रोल फाइल, ओके। देखो दो ही कंट्रोल फाइल था अपना वहां पे फिजिकली, हाँ, यहाँ भी दो कंट्रोल फाइल है, बराबर है, कोई चेंजेस नहीं ना है। नहीं सर, वहां भी 5 डेटा फाइल है, यहाँ भी 5 डेटा फाइल है। अब आते हैं अपना काम पे, लॉग फाइल पे, ठीक है। तो लॉग फाइल को हम लोग कैसे कैसे देख सकते हैं, व्यू होता है पहला, बी डॉलर लॉग, ये एक होता है, ठीक है। इसमें भी रिट्रीव करके दिखा देते हैं, देख रहे हो इधर ग्रुप्स बताया, फिर मेंबर्स है, बाइट्स है, ठीक है। ठीक है, सीक्वेंस भी है अपना इधर, सीक्वेंस बाद में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। स्टेटस दिख रहा है, यहाँ से हम लोग सब देख सकते हैं ना। पहले हम सारा लॉग व्यूज बता दें क्या क्या हो सकता है। एक और होता है वी डॉलर लॉग फाइल, वी डॉलर लॉग ही होता है मेरे ख्याल से। डीएससी होगा तो। अच्छा हाँ, डीएससी हो, लॉग फाइल, ठीक है। ये है, हम लोग दोनों से ही रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम रिट्रीव करते हैं, सीडी करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और जब ग्रुप लेते हैं, ग्रुप लिया, स्टेटस ले लेता हूँ, स्टेटस ले लिया, और यहाँ पे मेंबर ले लेता हूँ। ये सब तो सिमिलर है, आप लोगों को फेमिलियर है ये सब टर्म, डॉलर लॉग फाइल, लॉग फाइल, ठीक है। सर ये जो कमांड दे रहे हैं COL करके, तो ये क्या कॉलम नहीं आता है सही से तब दिया जाता है? हाँ, ये सेट करने के लिए जो भी स्पेस खा के रखा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छा से आउटपुट ठीक से दिखे मेरे को। ऐसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा किसके लिए है, तो इस कमांड से मैं सेट कर देखो कितना क्लियरली मेरे को समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। सर ये डिफॉल्ट में नहीं आएगा, मतलब बहुत चीजों में क्या ऐसा भी होगा कि करने पे वो डिफॉल्ट नहीं आएगा, उसे सेट करना होगा? हाँ, उसको सेट करना पड़ता है। अब डिफॉल्ट का तो मेरे को नहीं पता, हर बार तो सेट करना ही पड़ता है मेरे को।
अब सिस्टम सिस्टम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका सिस्टम याद रखेगा तो अच्छा बात है। मेरा मेरा गजनी वाला है, भूल जाता है सारा। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग, रीडू लॉग फाइल 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा। ग्रुप देखो, रीडू लॉग फाइल 1 को ग्रुप 1 मिला, इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, जैसे ही जिस ऑर्डर में बताया था वैसे ही है। अब वही चीज मैं दूसरे में करके देखता हूँ, ठीक है। इसमें था क्या डी डॉलर, ये सब ग्रुप था, थ्रेड था, मेंबर्स था इधर, डॉलर लॉ। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, ग्रुप किया, सीक्वेंस किया, मेंबर्स किया, स्टेटस किया, फ्रॉम पी। देखो क्या दिख रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। यहां से मेरे को क्या पता लगा कि ग्रुप 1 डिनोट कर रहा है रीडू लॉग फाइल 1 को, ग्रुप 2 डिनोट कर रहा है रीडू लॉग फाइल 2 को, और ग्रुप 3 डिनोट कर रहा है रीडू लॉग फाइल 3 को। यहाँ से पता चल गया हम लोग को, लगा यहाँ से पता। और वी डॉलर लॉग में देखो क्या है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 डिनोट कर दिया रीडू लॉग फाइल 1, रीडू लॉग फाइल 2, रीडू लॉग फाइल 3 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेंबर्स 1 है, मेंबर्स 1 है, मेंबर्स 1 है, इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ आप लोग। दो नहीं है, सिंगल सिंगल है तो फिर कॉपी नहीं होगा। हाँ, तो हर एक ग्रुप में सिर्फ एक मेंबर्स है, ठीक है, दो नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बस एक, मैंने तो आपको पता है कि एक रीडू लॉग फाइल में दो दो था, ठीक है, दो दो मेंबर्स थे, M1 M2 ऐसा करके। बट जब हम ये बनाए तो मेरे पास मेंबर 1 ही आया पहला। अब इसमें सपोज मेरे को ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं ऐड, ठीक है। ऐसे नहीं ऐड कर सकते कि ऑल्टर वगैरह कुछ कर दिए तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमें मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ता है मेंबर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। और आप लोग स्टेटस देखो क्या दिख रहा है, स्टेटस आप लोग बताओ कि अभी कौन सी रीडू लॉग फाइल में लिख रहा है, 2 में, क्योंकि वो करंट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, और बाकी 1 और 3 क्या है, खाली बैठा हुआ है, हाँ आइडल है। हाँ सर, खाली बैठा इनएक्टिव है ना। अब यहाँ पे थोड़ा परेशान करते हैं इसको, ठीक है। हम कमांड डालते हैं ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, ठीक है। अब देखो 2 बार कर दिया, अब देखो आप लोग इसको रिट्रीव करना, अब क्या दिख रहा है, वन करंट हो गया, टू वन एक्टिव। देखो पहले 2 में लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये कमांड डाला, मैं इधर लॉक स्विच मैन्युअली कर रहा हूँ, ठीक है, मैन्युअली इसको लॉक स्विच दिया, ये अपने आप नहीं ले रहा था, मैं खुद दिया लॉक स्विच, ठीक है। लॉक स्विच दिया तो वो क्या करेगा, फिर 3 में जाएगा, है ना। वो 3 में गया, 3 में जाके देखा इनएक्टिव है तो 3 में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो लिखना जैसे स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे फिर से वही कमांड डाल दिया, फिर से लॉक स्विच करा दिया। लॉक स्विच कराने के बाद क्या हुआ कि वो यहाँ से उठ के 1 में चला गया, 1 में लिखना स्टार्ट किया तो इसलिए करंट हो गया इधर। और
यहाँ से सबसे फर्स्ट टाइम लॉग स्विच किया तो यहाँ का जो डेटा था वो आर्काइवर लेके जा रहा है आर्काइव लॉग फाइल में, और फिर से मैंने सेम कमांड एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पे तो ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे तुरंत ये उठा के लेके गया सीधा आर्काइव लॉग फाइल में, इसलिए अभी दोनों आर्काइवर चल रहा है मेरे इधर, है ना? रीडू लॉग को 3 में जाना चाहिए था, हाँ तो 1 में कैसे गया? 3 में जाना चाहिए था ना। हाँ, तो 3 में जाके वो फिर 1 में गया। ये देखो, दो का ये हुआ ना। एक बार चलाया, फिर से एक बार चलाया, 2 बार चलाया है, देखो 2 बार चला। 2 बार सिस्टम ऑल्टर हुआ है, ठीक है। स्लैश देने से अल्टर होता है। हाँ, प्रीवियस जो कमांड होता है वो फिर से रिपीट हो जाता है स्लैश देने से, ठीक है। ठीक है। और फिर ये सीक्वेंस का क्या है? सीक्वेंस है कितने टाइम चल चुका अभी तक, डेटाबेस स्टार्ट हुआ तो कितने टाइम तक चल चुका, मतलब एक बार चेंज हुआ, दूसरा बार चेंज हुआ, तीसरा बार चेंज हुआ, ऐसे करके। देखो पहले था क्या, 12 13 14 चल रहा था सीक्वेंस, ठीक है, मतलब 14 नंबर टाइम ये चेंज कर चुका अपने आप को, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 2 बार और चेंज किया मैनुअली ऑल्टर करके, तो देखो यहाँ पे था 14 था, फिर चेंज किया 3 में, 15 गया, फिर चेंज किया 1 में, तो 16 हुआ, ठीक है। वो एक तरह से डेटाबेस स्टार्ट होता है तो वो सीक्वेंस लेने लगता है कि कितने टाइम लॉग स्विच हो रहा है, ठीक है। ये मतलब ओरेकल में जब से लॉगिन होता है, जब से चेंज होता है तब से ये हाँ, सीक्वेंस। वो सीक्वेंस चेंज होते रहता है, जब जब वो लॉग स्विच करेगा तब तक वो सीक्वेंस चेंज रहेगा, ठीक है। ओके। क्लियर हुआ ये? ये साइमल्टेनियसली मतलब दो पे आर्काइवर एक साथ चल सकता है। हाँ, चल सकता है, वहां पे बताया था नहीं चल सकता है ना, हाँ क्योंकि वहां पे पहले समझ लेते इसलिए मैंने वैसा बोला, यहाँ पे चल सकता है, कोई टेंशन नहीं है ठीक है। देखो अब क्या है स्टेटस, अब स्टेटस दिख रहा है, एक्टिव इनएक्टिव हो गया। दोनों इनएक्टिव हो गया, क्योंकि ये वाला तो सबसे पहले इनएक्टिव हुआ होगा, क्यों? क्योंकि इसको टाइम ही नहीं दिया लिखने का, तुरंत ऑल्टर कर दिया सिस्टम, लॉक स्विच कर दिया, इसलिए सबसे पहले इनएक्टिव यही हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, ठीक है। अब ऑल्टर करके फिर से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम लोगों को काम भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ज्यादा हैवी डेटा भी नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? तो यहीं यहीं तक रखेंगे क्लास, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।